So welcome to the next video of microorganism of class 8 biology. So we have already studied about vaccine and antibiotics, how vaccines are produced, okay, by using microorganisms only, how antibiotics are used against bacteria, okay, and what are the modes of transmission of pathogens, okay, or what you have studied, the usefulness of microorganism, how they are friendly to us, and the harmful nature of microorganism. अब माइक्रोऑर्गेनिजम्स को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं? माइक्रोऑर्गेनिज्म से हम लोग यूज़ करके वैक्सीन बना सकते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म को हम लोग मैन्योर यानी कि बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म सॉइल फर्टिलिटी गेन करने में हेल्प करता है हम लोगों को। We can even use microorganisms as food also, okay. Microorganisms, they are cleaner, natural cleaner of environment because they are detritus in nature. They decompose the rotting materials, rotting organic materials. Now we'll see another usefulness of microorganism, that is fermentation. Fermentation is a process of conversion of carbohydrate like glucose, maltose, sucrose or starch into alcohol or lactic acid or acetic acid by anaerobic action of microbes. Most of the microbes, they respire through anaerobic mode of respiration. So what is anaerobic mode of respiration? In absence of oxygen, okay, they convert the carbohydrate food material into alcohol or lactic acid or acetic acid, depending upon the microorganism, in which microorganism the anaerobic reaction is taking place. That is called fermentation actually. Fermentation is one kind of anaerobic respiration. अब लोअर लेवल में इतना ही जानकारी दिया जा सकता है। बाद में जाके पढ़ोगे कि नहीं, फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन तुम लोगों को यही बताया जाएगा। व्हाट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन occurs inside the cell of yeast. What happens? Using yeast we can convert the sugar or glucose into ethyl alcohol or ethanol. तो yeast यूज़ करके स्टार्च को क्या किया जाता है, इथेनॉल या एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो हम लोग को मिल जाता है अल्कोहल। दैट प्रोसेस इज नोन एज अल्कोहल फर्मेंटेशन या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। व्हाट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन? इट हैपेंस इनसाइड द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ओके। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कन्वर्ट्स lactose means the sugar or the carbohydrate of milk present in milk, so it convert lactose into lactic acid. So by this method curd is formed from milk. फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज नोन एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और किसके द्वारा करवाया जाता है? लैक्टोबैसिलस बोल के बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस छोड़ के लैक्टोकोकस बैक्टीरिया भी यूज़ करके भी हम लोग ये काम कर सकते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, यानी कि दूध को दही में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड वन इज एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन, conversion of sugar into acetic acid by Acetobacter. Now here inside the cell of Acetobacter, sugar is converted into acetic acid, which we use in kitchen for during the time of cooking as vinegar. तो किचन में जो विनीगर यूज़ किया जाता है दैट इज़ एक्चुअली एसिटिक एसिड, और वो एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन के बाद ही हम लोगों को मिलता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि माइक्रोब्स किस फील्ड में हम लोगों को हेल्प कर रहा है। इवन डिपेंडिंग अपॉन दिस फर्मेंटेशन देयर इज अ होल फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज, ओके। फर्मेंटेशन के ऊपर बेस करके कितना फूड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहा है। जो ब्रेड, जो पाउरुटी होता है, वो भी फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज़ का देन है। केक, वो भी फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज़ का देन है। बंस, डिफरेंट काइंड ऑफ कुकीज़, इडली, डोसा, डिफरेंट काइंड ऑफ हॉर्मोन्स, इवन they are the products of fermentation industries. यहाँ पे दिखाया गया है कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये जो है these are लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया अंडर माइक्रोस्कोप। यहाँ पे जूम आउट करके दिखाया गया है और दूध को कैसे दही में कन्वर्ट कर रहा है। Here you can see through this flow chart how carbohydrate, mainly glucose, is converted into different forms
by the action of microbes when they are performing anaerobic mode of respiration. So what you can see here, first glucose is converted into pyruvic acid or pyruvate. Then in the body of aspergillus they can be converted into lactic acid. In the body of lactobacillus this pyruvate glucose into pyruvate, and then pyruvate can be converted into lactic acid, and using this lactic acid fermentation we can make cheese, yogurt or curd. In the body of Saccharomyces cerevisiae means ईस्ट के बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है या पायरुवेट में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद पायरुवेट को कन्वर्ट किया जाता है इथेनॉल, इससे जो यूज़ करके हम लोग बियर, वाइन ये सब प्रोड्यूस किया जा सकता है। वही सेम जब हम लोग मैदा को गूंद रहे हैं, ओके, व्हेन वी आर मेकिंग द डो वी मिक्स द ईस्ट, उस मैदा का जो गूंदा हुआ मैदा का जो डो होता है उसके साथ हम लोग ईस्ट मिक्स कर देते हैं और उसको कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है। तब ईस्ट क्या करते हैं, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं। बट व्हेन वी बेक इट, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बाहर आना चाहता है तो क्या करता है, ये जो ब्रेड का जो फ्लैपीनेस, ब्रेड जब हम लोग खाते हैं, पावरोटी जब हम लोग खाते हैं, उसके अंदर स्पॉन्जी बहुत सारे पोर्स देखने को मिलता है, होल्स देखने को मिलता है। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, फूड पॉइजनिंग। अब ये माइक्रोब्स का एक एनमाइटी है हम लोग के साथ। माइक्रोब्स क्या करते हैं, कभी कभी अच्छा खासा खाना को ख़राब कर देता है, उसमें जहर, टॉक्सिन प्रोड्यूस कर देते हैं। When food is contaminated with pathogens or toxin are consumed, in case of it causes food poisoning। उस खाना को अगर खाओगे तो बीमार भी पड़ सकते हो, पेट खराब भी हो सकता है, यानी कि मर भी सकते हो। ओके, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम बोल के एक बैक्टीरिया होता है जो कि एक बिटॉक्स या बोटुलिनम टॉक्सिन बोल के एक फूड पॉइजनिंग एजेंट प्रोड्यूस करता है, और उस बिटॉक्स से अफेक्टेड फूड अगर तुम खा लोगे तो तुम मर भी सकते हो। ओके, दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पॉइजन उसको माना जाता है, बिटॉक्स को, यानी कि बोटुलिनम, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम का जो टॉक्सिन है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम इज़ ए पेन इन स्टमक। तो फूड पॉइजनिंग का सिम्टम्स क्या है, पेट दर्द स्टार्ट हो जाएगा। इन सीवियर केस फूड पॉइजनिंग कैन ऑल्सो कॉज डेथ। तो नॉर्मल केसेस में क्या होता है, लूज मोशन होगा, पेट दर्द होगा, वॉमिटिंग होगा। ओके, तो इसलिए फूड पॉइजनिंग ना हो जाए या फूड जल्दी ख़राब ना हो जाए, इसलिए हम लोगों को क्या सोचना चाहिए, फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स के बारे में सोचना चाहिए। यानी कि ऐसा क्या करेंगे खाना के साथ ताकि फूड का जो लॉन्जिविटी है, फूड का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाए, वो तुरंत माइक्रोब्स या पैथोजन से अफेक्टेड ना हो पाए, तुरंत सड़ ना जाए। ओके, सो वी कैन यूज़ केमिकल मेथड। For chemical method, chemical preservatives are used in food preservation by major food industries as they are harmless to humans। अब यहाँ पे कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स यानी कि जो मटेरियल्स यूज़ करके फूड को लॉन्जिविटी प्रोवाइड किया जा रहा है, दे आर नोन एज केमिकल प्रिजर्वेटिव। अब कुछ केमिकल्स है, थोड़ा बहुत तो हार्मफुल इफेक्ट है ही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, लेकिन वो उतना नेग्लिजिबल है। जनरली फूड इंडस्ट्री में जो फ्रूट जूस वगैरह जो पीते हो, या ड्राई फूड, जो स्टोर्ड जो फूड है, कैन जो फूड है, उसमें जनरली ये फूड प्रिजर्वेटिव मिक्स किया जाता है। ओके, अब फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे क्या यूज़ किया जाता है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट एंड सोडियम बेंजोएट, ये दोनों जो है केमिकल प्रिजर्वेटिव का यूज़ किया जाता है कॉमनली, लेकिन ये दोनों का थोड़ा हार्मफुल इफेक्ट भी है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। इसलिए आजकल लोग सोडियम मेटाबाइसल्फेट और सोडियम बेंजोएट यानी कि केमिकल प्रिजर्वेशन का मेथड लोग उतना प्रेफर नहीं करते, हालांकि यूज़ तो हो रहा है बड़े पैमाने में। नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, घर में हम यूज़ किया जाता है। वेजिटेबल्स आर पिकल्ड यूजिंग सॉल्ट एज द सॉल्ट रिमूव्स वाटर एंड किल्स बैक्टीरिया एंड फंगल सेल्स। सॉल्ट क्या होता है, एक नेचुरल एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होता है सॉल्ट के पास।
और तो और क्या करता है, सॉल्ट क्या करता है, डिहाइड्रेटेड कर देता है, यानी कि फूड मटेरियल के अंदर जो पानी जमा हुआ है उसको बाहर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से वो ड्राई हो जाता है और माइक्रोब्स उसको बहुत जल्दी अटैक नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट यूज़ करके भी बहुत सारे फूड प्रिजर्व कर रखते हैं। जैसे कि जनरली मीट जो होता है, घर पर देखे होंगे, वो नमक से या हल्दी से उसको लपेट के रख दिया जाता है, ज़्यादा देर तक के लिए रखना होगा तो we can preserve by using we can use sugar as preservative also. Okay, sugar is used for preservation of jam, jellies and squashes. मुरब्बा खाते हो ना, उस मुरब्बा को किस में स्टोर करके रखा जाता है, शुगर में, या बहुत सारे जो मिठाई होता है उस सब में शुगर में स्टोर करके रखा जाता है। द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स is restricted by use of sugar as it reduce the moisture content। तो शुगर भी वही करता है, मॉइस्चर कंटेंट को घटा देता है, और शुगर क्या करता है, फूड मटेरियल के बाहर की तरफ से सरफेस एरिया में एक शुगर का लेयर बना देता है, जिसकी वजह से माइक्रोब्स या एयर एंट्री नहीं ले पाते हैं। ओके, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनीगर, पिकल, अचार कैसे बनाते हैं, मैंगो का, हाँ, या टैमरिन का, इमली का अचार, आम का अचार कैसे बनाते हैं, उस आम या इमली को हल्दी से लपेट के उसको अच्छी तरह से नमक हल्दी में लपेट के उसको तेल में डाल दिया जाता है या विनीगर में डाल दिया जाता है, बन जाता है वो अचार, और 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल भी ख़राब नहीं होता है। तो इसलिए इससे पता चलता है कि ऑयल और विनीगर को भी फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट, पास्चुराइजेशन। लुइस पास्चर का नाम यहाँ पे बताना पड़ेगा, द फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। पास्चुराइजेशन टेक्निक इज ए प्रोसेस ऑफ सुपरहीटिंग एंड कूलिंग द बिवरेजेस टू किल पैथोजेनिक माइक्रोब। अब यहाँ पे ये लुइस पास्चर ये इन्वेंट किए थे, उन्होंने क्या किए थे, जनरली जो लिक्विड बिवरेज जो है, जैसे कि मिल्क, फ्रूट जूस, हाँ, ये सब को तुरंत हीट किया जाता है, कितना डिग्री, 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। उसके बाद तुरंत इसको कूल डाउन कर दिया जाता है, मतलब तुरंत गर्म करो तुरंत ठंड कर दो। इसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया को या उसमें जो माइक्रोब का जो ग्रोथ होने वाला है उसको एक सडन शॉक की वजह से वो माइक्रोब्स मर जाते हैं। पेस्चुराइजेशन इंश्योर द टेस्ट ऑफ द बिवरेज सच एज मिल्क डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड। अब ये ज़्यादा 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, जिसकी वजह से टेस्ट भी ख़राब नहीं होता है, और जो फूड मटेरियल जो स्टोर करने वाले हो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ भी बहुत देर तक नहीं होगा। ओके, सो पास्चुराइजेशन टेक्निक देखोगे, जो पैक्ड जो मिल्क होता है या कैंड जो फ्रूट जूस होता है उसके पीछे लिखा हुआ रहता है पास्चुराइज्ड। स्टोरेज एंड पैकेजिंग, ड्राई फ्रूट्स एंड मेनी वेजिटेबल्स आर प्रिजर्व्ड इन एयर टाइट और एयर सील्ड कंटेनर्स। अब ऐसे कंटेनर में रखा जाता है फूड को, जैसे कि ड्राई मीट, ड्राई फ्रूट, ड्राई वेजिटेबल्स, हैं, जिसमें बाहरी जो एयर है उसके साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं बन पाए, क्योंकि माइक्रोब्स तो एयर के थ्रू मूव कर सकता है, इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू एयर। सो इफ़ आई एम कटिंग द कनेक्शन ऑफ एयर, if I'm cutting the connection of air, there is no chance to get affected by microbes. Okay, so एयर टाइट या एयर सील्ड करके भी हम लोग प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, या तो कभी कभी सन ड्राई सूखा के भी प्रिजर्वेशन किया जा सकता है। द एब्सेंस ऑफ पेयर्स प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी। सो विद दिस वीडियो लेक्चर, आई एम एंडिंग दिस वीडियो लेक्चर. We'll meet, we'll discuss with new topic in the upcoming video. Thank you all.